ہاں جی، یہ ہمارے پاس ہے، یہ کی ورڈ ریسرچ میں جائیں گے، ہمارے پاس یہ میگنیٹ ہے، میگنیٹ پر کلک کریں گے کی ورڈ ریسرچ کے لیے. اب دیکھیں یہ کی ورڈ ریسرچ کے نیچے ہے سیریبرو اور میگنیٹ. سیریبرو اور میگنیٹ میں کیا فرق ہے؟ سیریبرو کو ہم یہاں پر جا کے ایسن دیتے تھے، وہ ہمیں ایسن کے بدلے دیتا تھا کی ورڈ جو اس ایسن کے اگینسٹ دیتا تھا، مطلب جو اس ایسن نے یوز کیے ہوتے تھے وہ نکال کے دیتا تھا. اور یہاں میگنیٹ میں کیا کرتے ہیں، ہم دیتے ہیں اس کو کی ورڈ اور دین کرتے ہیں گیٹ کی ورڈ. تو یہ جناب والا ہمیں کی ورڈ نکال کے دیتا ہے. اور اس طرح کی ورڈ نکلیں گے، باقی اس کی ریلیونسی ویسے چیک کریں گے جیسے ہم کر رہے تھے. اور ہم یہاں پہ اس کا میچ ٹائپ صرف یہاں پر ہم نے جا کے آرگینک لگانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کے پاس پیڈ ٹولز ہوں گے تو آپ اس میں اس کو لگا لیں گے، کوئی ایشو نہیں ہوگا. چھوٹی موٹی آپ گھر میں اس کو ٹائم دیا کریں، 10-15 منٹ ایک مرتبہ. ایٹ لیسٹ جو ہم پڑھتے ہیں وہ آپ کو ایک مرتبہ اس کو دیکھا ضرور کریں، تاکہ پھر جو ہے نا آسان ہوگا. اچھا، اس میں یہ میچ ٹائپ پہ آنا ہے، آپ نے آرگینک کرنا ہے. ابھی یہاں نہیں ہوگا کیونکہ ابھی میرے پاس یہ فری والا جو ہے اس لیپ ٹاپ میں. تو آپ جو ہے فرض کریں آپ نے آرگینک میچ کر دیا، اور یہاں یہ ہمارے پاس کی ورڈز آ گئے. ہم نے کی ورڈز میں کیا دیکھنا ہوتا ہے آگے؟ ایک دو چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ سر ایکسکیوز می سر، سیریبرو میں ہم ایسن لگاتے ہیں اور میگنیٹ میں کیا؟ کی ورڈ کے بدلے کی ورڈ ملتا ہے ہمیں. سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ہاں، مطلب اس سے ریلیٹڈ سارے کی ورڈس ملیں گے ہمیں، مطلب اس سے ملتے جلتے کوئی کی ورڈس ملیں گے ایسا؟ جی بالکل، مطلب وہ اس نیش میں جو یوز ہو رہے ہوں لائک گے وہ. لائک جیسے ہم بیک پہ لگاتے ہیں اس کے اندر جی جی، سرچ. یہ دیکھیں اب ہم نے وہ کیا، کی ورڈ لگایا ویجیٹیبل کٹر، تو اس نے یہ سرچ والیوم ہے 12,111 اس کا کچن گیجٹس کا. تو اسی طرح یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں سے ہم نے اس کا یہ جو تیر سا بنا ہوا ہے اس پر رائٹ کلک کر کے اوپن نیو ٹیب کریں گے. یہاں سے ہم نے ریلیونسی چیک کرنی ہے. اس سے ہم نے ریلیونسی چیک کرنی ہے کہ کیا یہ جو ہمارا لگا ہوا ہے کیا کہتے ہیں کی ورڈ، اس کی ورڈ کے ذریعے ہماری جو مارکیٹ اوپن ہو رہی ہے، کیا وہ ہماری فیلڈ ہمارا ویجیٹیبل کٹر سے ریلیٹڈ ہی پیلر ڈائسر سلائسر ہی شو کروا رہا ہے، یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری ہم نے ویجیٹیبل کٹر لکھا ہے اور وہ کوئی دکھا رہا ہے دوسرا کٹر، کارپیٹ یا قالین کٹر دکھا رہا ہے. تو اس طرح جناب ٹھیک ہے، یہ ہماری فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے تو ہم اس کو اوکے کریں گے. تو اگر اس سے ریلیٹڈ نہ دکھائے، جیسے آپ نے کہا کارپیٹ کٹر وغیرہ، تو اس کا مطلب کیا پھر؟ اس کو پھر کراس کر دیں گے، یہ اپنی لسٹ سے نکال دیں گے یہاں سے. اوکے، صحیح یہ کراس صحیح. کا بٹن ہے، یہاں سے وہ نکالتے جائیں گے کیونکہ وہ پھر غلط ہو جائے گا نا. سر یہ ڈیفائن کر دیں کہ یہ کی ورڈ ہم سرچ کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ اصل میں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کی ورڈ کیوں سرچ کر رہے ہیں. یہ ہم پروڈکٹ اپنی پروڈکٹ کو اسائن کرنے کے لیے کر رہے ہیں نا سرچ. جی، اپنی کی ورڈ کے بیک اینڈ پہ لگانے کے لیے ہی کر رہے ہیں. ہاں، وہی میں نے پوچھا کہ اس کے بیک اینڈ پہ جو ریلیٹڈ کی ورڈس لگتے ہیں یہ اس لیے ہے. جی بالکل اسی لیے ہی ہے. ایک منٹ ذرا ہولڈ کیجئے گا، میں بتاتا ہوں آپ کو ساری ڈیٹیل اس کی. جی سر، میں بتاتا ہوں. یہ ہماری لسٹنگ کی رینکنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں سارے کی ورڈ جو ہم ٹائٹل میں یوز کر رہے ہیں، ڈسکرپشن میں یوز کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بلیٹس پوائنٹ میں اور بیک اینڈ سائز ٹرمز میں. جتنے ہمارے زیادہ سرچ والے کی ورڈ ہوں گے اتنی ہماری لسٹنگ کی رینکنگ امپروو ہوگی اور وہ اوپر شو ہوگی پروڈکٹس. منیمم کتنے لگا سکتے ہیں ہم بیک اینڈ پہ کی ورڈز ریلیٹڈ؟
वो उधर शो हो रहा होता है, हम कितना आई थिंक 200 या कम है, मुझे इस टाइम माइंड में नहीं आ रहा। तो उधर लिखी होती है हर उसमें भाई आप कितने कीवर्ड यूज कर सकते हैं, टाइटल के अलग है, तो उसके डिस्क्रिप्शन के अलग हैं, और क्या नाम है बुलेट पॉइंट के अलग है। आप गूगल करें ना भी कितना कितना हम यूज कर सकते हैं। सही। यानी कि जो टॉप पे आ रहा है रेलिवेंसी के एतबार से, उसको आप इन तीनों जगहों पे यूज करेंगे ज्यादा से ज्यादा, या जितना भी मैं अलाउड आपको है उसको। बताता हूँ, आपको सारा बताता हूँ, डोंट वरी। एक्चुअली वो मैसेजेस क्लास टाइम में कर देते हैं, मैंने इनको कहा हुआ भी है कि आप मैसेजेस ना किया करें इतने, वो फिर कॉल करने लग जाते हैं, भाई बंदा बिजी होता है। जो ज्यादा अच्छा जी, सर्च वो वॉल्यूम वाले जिस हिसाब से होते हैं उसको हम उसी हिसाब से यूज जी करते हैं, मतलब सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम वाले टाइटल में, फिर इसी तरह डिस्क्रिप्शन बुलेट पॉइंट में, फिर जो कम मतलब होंगे सर्च वॉल्यूम, ये जो हमारे पास बच जाएंगे उन्हें हम बैक एंड साइट में यूज करते हैं। भी सर आपको डिटेल बताते हैं भी कितने कितने हम यूज कर सकते हैं और क्या हिसाब है इसका। हाँ जी, जो टाइटल आपका होता है वो 200 कैरेक्टर्स का होता है, 120 से 150 तक का अच्छा समझा जाता है, और बाकी जो होता है आपका बुलेट पॉइंट वो 250 कैरेक्टर्स का होता है, और आपकी डिस्क्रिप्शन 2000 कैरेक्टर्स की होती है। और इसके अलावा क्या बात थी ये कि बैक एंड बाकी कीवर्ड्स कितने होते हैं, कितने तक लगा सकते हैं मिनिमम? वो कोई 250 होती है उनकी कैरेक्टर लिमिट, तकरीबन 200 से 250। सर मैंने हीलियम में कुछ सर्च करा तो 2-3 दफा मैंने इसको सर्च करा, तो मेरे पास तो अपग्रेड नहीं है। तो वो हीलियम में उसने एक्सीड लिमिट दे दी कि बस अब आप इससे ज़्यादा इसको सर्च नहीं कर सकते। जी मैं बताता हूँ आपको। सर्च लिमिट होती है ना इसके अंदर, फ्री वाले में, इसलिए। आप ऐसा करें, आप अभी ये कुछ दिन सीख लेना, समझ लें कि कैसे कैसे यूज़ करना है, फिर आप वो इंशाल्लाह बाय कर लेना टूल्स, और उस पर फिर आपको अच्छे से समझ आएगी। अच्छा बात यह है, कोई बंदा मेरे ख्याल में क्लास में आना चाह रहा था, वो मिस की वो आए मैसेजेस आ रहे थे, लिंक भेजा उनको। अच्छा जनाब, बात यह है कि इसमें जनाब हमने रेलिवेंसी चेक करनी है, उसको क्रॉस कर देना है, और सबसे मेन चीज़ जो होती है, अब बात उसको माइंड में रखना है, इस बात को, पॉइंट को, वो आपका सर्च वॉल्यूम है रेलिवेंसी के बाद। सही है, सर्च वॉल्यूम देखना है, और वो भी मैच टाइप आपने लगानी है, ऑर्गेनिक ऊपर करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे। और उसके बाद आपने जनाब वाला अगर यहाँ पर हमारे पास गेट प्लान होता तो ये हमारा सर्च वॉल्यूम भी हाई टू लो हो जाता। वो हमने सर्च वॉल्यूम इसमें हाई टू लो करना होता है, ताकि अच्छे सर्च वॉल्यूम वाले ऊपर आ जाएं, और ऊपर से नीचे हम उनकी रेलिवेंसी चेक करते जाएं और उनको डन करते जाएं, और जो फारिग होंगे उनको हम फारिग करा देंगे। और इसी तरह जो हमें नहीं चाहिए होंगे हम उनको क्रॉस करते जाएंगे, और बाकी जो बच जाएंगे हमारे पास, फर्ज करें ये अभी हमारे पास हैं 3422 कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो इसके क्या करते हैं, हम इसको डायरेक्ट यहाँ डालते हैं, आपके एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से, एक्सेल फाइल में भी आप कर सकते हैं, और फ्रैंकनस्टाइन में भी कर सकते हैं। फ्रैंकनस्टाइन में करने से आप फ्रैंकनस्टाइन पर क्लिक करेंगे तो आप देखते हैं नेक्स्ट, ये उधर चले जाएंगे। बस वही है कि आना है, एक हाई टू लो करना है सबसे पहले, फिर इसकी रेलिवेंसी चेक करनी है, और मैच टाइप आपने वो रखनी है जो हमारी है ऑर्गेनिक वाली। और देन यहाँ उस जब ये डन हो जाएंगे, आपके हर चीज़ क्लियर है, पास हो जाएंगे कीवर्ड्स वहाँ से, आपने इनको एक्सपोर्ट कर देना है। फ्रैंकनस्टाइन में यहाँ आ गया, और यहाँ करना है आपने ये वाला रेडियो बटन ऑन करना है, वन फ्रेज, वन वर्ड और फ्रेज पर लाइन। सर जस्ट क्लिक करते ही ये सारे यहीं पे डायरेक्ट आ जाएंगे वर्ड कीवर्ड्स? जी यहाँ आ जाएंगे। और रेडियो बटन और चेक बॉक्स का पता है आप लोगों को कि नहीं, ये मुझे बताएं ज़रा। मुझे तो नहीं पता। ओके, सर हमारे पास ये खुल ही नहीं रहा। क्या कहा जनाब?
मेरे पास ये पेज ओपन नहीं हो रहा सर, क्योंकि वो लिमिट उसमें वो नहीं है, वो पैसे मांग रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो इसको समझें, मुश्किल नहीं है, इसको समझें आप, जी सर ओके। समझा दें इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट जब वो परचेज हाँ, करेंगे। रेडियो बटन होता है, जैसे ये है, ये रेडियो गोल जो बटन होता है इसको रेडियो बटन कहते हैं। जो बॉक्स होता है वो चेक बॉक्स, जैसा कि आपको नाम से ही उसके जाहिर है, बटन, रेडियो बटन, बटन मोस्टली गोल होते हैं। तो ये रेडियो बटन हो गया, चेक बॉक्स। रेडियो बटन जब आप क्लिक करते हैं एक पर, तो इनमें से मतलब यहाँ अगर 100 रेडियो बटन होते तो हम उनमें से एक पर क्लिक करते तो ऑटोमेटिकली बाकी जो पहले क्लिक होता वो अनचेक हो जाता है। यानी इसमें आप एक को चेक कर सकते हैं। लाइक अब हम इसको कर रहे हैं 1 वर्ड और फ्रेज पर लाइन, तो ये देखना दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा कैंसिल। जो चेक बॉक्स होता है आप उसको जो है मल्टी को चेक कर सकते हैं, तो ये फर्क होता है इसका। यहाँ आपने करना है, एक मिनट में यहाँ से आपको बताता हूँ, स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा ना आपको, वो फिर मिल जाएगा। सर ये आज का लेक्चर भी शेयर कर दीजिएगा। हो जाएगा ना। जी सर, क्योंकि स्टार्ट नहीं ले पाई मैं। जी क्या फरमा रही हैं? मैं कह रही हूँ आज का लेक्चर जरूर सेंड कीजिएगा, स्टार्ट का हाफ आवर मेरे मैं नहीं ले पाई। ओके, अच्छा जी, आप पहुंच गए यहाँ पर, आपने इसको कर दिया, रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करना है, ये हो गया, लोअर केस हो गया आपका, और 1 वर्ड और फ्रेज पर लाइन हो गया, और ये यहाँ हो गया। अब ये देखें डुप्लीकेट हमने डिलीट किया है। अब यहाँ पर थे टोटल कैरेक्टर और टोटल वर्ड्स 148 थे ये वाले, इस साइड पर, बिफोर डिलीटिंग डुप्लीकेशन, ठीक है। जब ये डिलीट हो चुके हैं, डुप्लीकेशन जो आ रही थी, तो ये 67 वर्ड्स बचे हैं। ये क्या हुआ है, ये काम आपने 10 से 15 सेकंड में किया है, यहाँ पर 2-3 क्लिक्स में। जबकि मैनुअली अगर आप ये काम करने बैठते तो आप भूल जाते और काफ़ी टेंशन होती है। अच्छा, जब ये काम हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे, 1 वर्ड पर लाइन आ जाएगा, तो आपने फिर यहाँ से नीचे स्क्रिबल्स है, इसमें जाना है, स्क्रिबल्स में इस पर क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली ये आपके कीवर्ड्स जो डन हुए हुए होंगे वो आगे चले जाएंगे। अगर आपका टाइम एंड हो गया या आप नहीं करना चाह रहे उस दिन, या कोई और मसरूफियत है, आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसकी फाइल में, एक्सेल की। फिर वहां से एनालिसिस करके आप मीन देख करके अच्छे सर्च वॉल्यूम वाले रखेंगे, बाद को डिलीट करके फिर वहां से कॉपी करके आप यहाँ फ्रैंकस्टाइन में डाल के फिर उनका वो डुप्लीकेशन डिलीट करके फिर स्क्रिबल में ला के फिर इसी तरह यहाँ आ जाएंगे। जब यहाँ लेके आएंगे आप, तो आपने यहाँ आकर इस पर करना है अप्लाई। अब देखना है ये अप्लाई, आपने अप्लाई किया तो ये वर्ड्स बचे जनाब 60/60। तो इन 60 वर्ड्स को अब क्या करना है, आपने यूज़ करना है। और यहाँ आपके पास ये फर्स्ट टाइम टाइटल है। अब हम क्या करते हैं, वेजिटेबल कटर हमारे पास एक ऑलरेडी ओपन है, तो हम इसकी लिस्टिंग को चेक करते हैं कि उसने, हम ये फर्ज कर लेते हैं कि ये हमारे जो कीवर्ड्स हैं ये एक अच्छे सर्च वॉल्यूम वाले हैं, क्योंकि वैसे हमने तो निकाल के वो किया, इतनी इसकी तस्दीक नहीं की, लेकिन हम समझते हैं कि ये हैं हमारे अच्छे हैं। तो अब हम यहाँ, अगर हम यहाँ बनाते अपना टाइटल, चलो इसका टाइटल बना लेते हैं, बाकी चीज़ें जो हैं वो हम कॉपी करेंगे उसकी ऊपर वाले, हमारा जो सेलर है। तो ये हमारे पास है जनाब वाला, क्या कहते हैं उसको, फर्ज करें किचन किंग, किचन किंग, जो कि अगर मैं किचन की आइटम वो करूँगा तो मेरा ये ब्रांड नेम होगा, किचन किंग हो गया जनाब। इसके बाद है शेफ चॉइस आप करते हैं, और इसके बाद आप करते हैं वेजिटेबल, वेजिटेबल चॉप पर हम रखते हैं, क्योंकि चॉप पर इसको मेन वर्ड हम लेते हैं। वहाँ तो हमने भले वो लिखा था वेजिटेबल कटर, बट चॉप पर जो है उसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है कटर से। और ये उस दिन हमने देखा था गूगल ट्रेंड में, याद है सबको कि नहीं?
جی سر یاد ہے. اب ہم لکھتے ہیں ویجیٹیبل چاپر، اس کے بعد کرتے ہیں ڈائسر، سلائسر، گریٹر، اور اس کے بعد ہم کرتے ہیں مین کی ورڈ کے بعد کیا آتا ہے؟ میٹیریل آتا ہے. جی سر. نہیں اوکے. مٹیریل نہیں ہے. ہاں مٹیریل پھر مٹیریل پھر 10 ڈائمینشن اور in 1 پروفائل. اس کی ہم چلو ایک خصوصیت ڈال دیتے ہیں کہ یہ 10 in 1 ہے. 10 in 1، اور اس کے بعد میٹیریل ہم اس کا ڈالتے ہیں فوڈ گریڈ یا گریڈڈ فوڈ گریڈ پلاسٹک. اور ہم فرض کرتے ہیں یہ 11 انچز اس کا جو میکسیمم کلر اس کا ہے وہ ہم فرض کرتے ہیں گرین چل رہا ہے. اچھا جی، اب یہ دیکھیں، اب یہاں یہ چیک کریں، ہم نے چوپر یوز کیا، ڈائسر کیا، فوڈ کیا، سلائسر کیا، یہ کی ورڈ جو یوز کیے وہ ان پر ایک تو کراس لگ گیا اور اس کے اوپر ایک پاور بن گئی. اسی طرح اگر اس میں ہم وہ چوپر کو دوبارہ ایسے لکھ لیتے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے، ایک منٹ. اچھا اب دوبارہ اس میں یوز ہو چکا نا ایک مرتبہ، اگر نیچے دوبارہ یوز ہوگا نا ایک کی ورڈ تو اس کو کیا کرے گا، یہ اس کی پاور کو پھر بڑھا دے گا. مطلب ڈائسر نیچے 5 ٹائم یوز ہوتا ہے مور، تو ایک مرتبہ یہاں ہو چکا ہے تو یہ اس کی پاور 6 ہو جائے گی، 6 ہو جائے گی. اٹ مین کہ یہ اتنے مرتبہ آپ کی لسٹنگ میں یوز ہو چکا ہے. اچھا جی، اب ہم اس کو کرتے ہیں اپنے والے کو ڈیلیٹ. اب ہم اس کی لسٹنگ چیک کرتے ہیں، وہ ہم نے جو کی تھی اوپر سے کاپی کی تھی. اچھا جی، اب یہ دیکھیں کہ یہاں آ رہا ہے ان یوزڈ 52، 8 یوزڈ ہو چکے ہیں، کاپی ہو چکے ہیں. مطلب اس کا اتنا فائدہ ہے فرینکسٹائن میں، جیسے ہم نے اس میں نکلے ہیں ہم 10-15-20 سیکنڈ میں نکلے ہیں، ہم نے سارا کچھ چھانٹی کر لی، پھر ادھر آ گئے اور ادھر اب کرتے جائیں گے، بلٹس کو کاپی کر کے یہاں ڈالتے ہیں. اینڈ پہ ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کی لسٹنگ کیسی ہے، اچھی ہے یا اس سے ریلیٹڈ اس نے کتنے ورڈ یوز کیے ہیں اور نہیں کیے. اب یہ دیکھیں جی 50 ہو گئے. اب 2 ورڈز آئے ہیں اوور آل اس میں اس نے نئے یوز کیے ہیں، ٹھیک ہے. اور باقی ایک پرانا اس نے ورڈ یوز کیا ہے، اس لیے 2 کراس ہوئے ہیں ادھر سے. پہلے 8 یوز تھے، اب 10 ہیں، 8 to 10 ہوئے ہیں. دین ہم جائیں گے دوبارہ اس میں، ہم اپنا نیکسٹ بلٹ جو ہے اس کو کاپی کرتے ہیں اور اس کو پیسٹ. مطلب اب سر اگر دیکھیں یہاں پر کوئی اگر اگین اگین کوئی ورڈ یوز ہو رہا ہے تو وہ ریڈ ہو جائے گا انڈر لائن یا کیا؟ مطلب جو یوز ہوتا جائے گا بس وہ تو ریڈ ہی ہونا ہے نا، وہ انڈر لائن بھی ہونا ہے. جو کی ورڈ اسکرائبل میں ہے وہ اس میں یہاں پہ لکھیں گے تو وہ ریڈ ہو جائیں گے. جی، اور اس کے جو بعد ہم ہمارا کون؟ یہاں سے کاپی کر کے یہاں ڈائریکٹ ڈالے تھے وہ اس میں سے اگر کوئی یہاں پہ آیا تو ایسا؟ ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی.
आवाज आपकी कम आई है मुझे, मैंने हाँ जी तो कर दी है। मैंने पूछा वहां से जो हमने कॉपी की करके यहाँ पे डायरेक्ट डाले थे, उसमें से अगर यहाँ पे कोई रिपीट होता है तो वो रेड होगा, ऐसा कुछ? भाई कोई भी कीवर्ड जो यहाँ खड़े हैं ना, यहाँ पर मौजूद हैं ये वाले, भले वो यूज हो चुका है या नहीं हो चुका पहले, ठीक है ना, वो जब भी दोबारा यूज होगा तो वो रेड हो जाना है। फर्ज करें हम उसकी बात करते हैं, एक मिनट। स्पेलिंग चेंजेस सर। हाँ बताएं ना मुझे भाई। ये देखें, अब समझ आइए, चॉपर पहले यूज हो चुका है, अब देखें पहले एक मरतबा यूज हुआ है ऊपर, अब मैंने दोबारा लिखा, उसकी पावर 2 हो गई है, ऊपर फर्स्ट रो में ये खड़ा है यहाँ पे चॉपर। ओके, नजर जी आ जी रहा है कि नजर आ नहीं? जी नजर अब आ रहा ये, है। अब मैं चॉपर को डिलीट कर रहा हूँ, अब उसकी पावर 1 हो गई है। ओके, अब ये देखें, अब मैं करने लगा हूँ जनाब ओनियन, ठीक है, ओनियन की पावर 2 कर दी हमने, चॉपर की पावर 2 कर दी हमने, डाइसर की ये फर्स्ट रॉ को मैं 2 कर रहा हूँ, और फूड 7 टाइम हो चुका है ऑलरेडी, और फूड नाउ 8 हो चुका है। अब समझ आई है कि नहीं? जी समझ आ गया। जो इधर हैं, जो कीवर्ड्स इधर हैं वो हो जाएंगे, इनमें से सर कोई भी कीवर्ड इधर आएगा वो रेड हो जाएगा। इसकी कोई लिमिट है कि ये 8 10 11 12 कितने हम कितनी दफा यूज कर सकते हैं एक कीवर्ड की? नहीं, इसकी लिमिट नहीं है, लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ मैंने कॉपी कर दी है, मतलब चलो मैं वो भी कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन कॉपी करके फिर आपको समझाते हैं, बताते हैं इसकी डिटेल किधर गई है इसकी। अब ये देखें, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो नजर आ रही है आपको, जिस डिस्क्रिप्शन में, अब ये हेडिंग है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ओके, जिस हेडिंग में आपकी वो होती है पिक्चर लगी होती है, वो ए प्लस डिस्क्रिप्शन होती है, ए प्लस कंटेंट होता है। जिस डिस्क्रिप्शन में पिक्चर लगी हुई हो, ये देखें भाई, ऐसे साफ करना है, ऐसे लगाना है, ऐसे जोड़ना है, ऐसे यूज करना है, ये तरीका है, इसमें सेफ्टी है, इसमें नहीं है, वगैरह वगैरह। तो ये जो जो पिक्चर्स डिस्क्रिप्शन में लगती हैं, डिस्क्रिप्शन वाली पिक्चर्स ए प्लस कॉन्टेंट कहलाती हैं। अब हम इसको करते हैं कॉपी, और ऊपर जो है लगाते हैं जरा कहीं। अदर आज तो अपने कमरे में गए तो क्लास क्लास में अम्मी का पढ़ा हुआ था। अच्छा जी, अब देखें क्या करना है हमने, अब ये करना है हमने कि, एक मिनट में म्यूट कर लो इनको। अच्छा, अब ये करना है हमने कि देखना है जो कीवर्ड्स बच गए हैं, जिनको यूज नहीं कर सके हम एक्चुअली वो हमारे पास एक क्वेश्चन होता था ना पेपर में, कि ये जी 5 अल्फाज हैं, इनको जुमलों में इस्तेमाल करें। तो ये जो अल्फाज होते हैं, ये जो कीवर्ड्स आपने निकाले होते हैं रिसर्च करके, इनको आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। जुमले कैसे बनाने हैं? जुमले ऐसे बनाने हैं जो इन कीवर्ड्स को भी अपने अंदर समो लें, समेट लें, और आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी तारीफ और तशरीह भी हो जाए थोड़ी सी, जैसा कि, यानी कि सिर्फ वो सेंटेंसेस नहीं बनाने, बल्कि बा मैनी और मैनी खेज होना चाहिए उनका, जो तशरीह हो, जो बनाने का मकसद हो, वो भी सामने आए, और ये आपके वर्ड्स भी उनमें इस्तेमाल हो जाएं। अब क्या करेंगे, जैसे अब हम सर देखेंगे जी। ये प्रीमियम, जैसे प्रीमियम क्वालिटी और ब्लेड्स, ये सबको यूज करना है हमें? जी, इनको सबको उस वक्त करना है। अब ये तो हमने वैसे रैंडमली उठा के ले आए हैं ना यहाँ, वहाँ आपने रिसर्च करनी है इन पर अच्छी खासी, करने के बाद जो अच्छे कीवर्ड्स वाले और रिलेटेड टू योर की प्रोडक्ट होंगे, तो उन कीवर्ड को आगे फर्दर प्रोसीड करना है और फॉरवर्ड करके लाना है, और यहाँ लाके यूज करना है। और जो बच गए हैं, फर्ज करें हमारे पास ये बचे हुए हैं, तो हम यहाँ इसको कर लेते हैं
यहाँ पर एक सेंटेंस लिखते हैं प्रीमियम। अब प्रीमियम का वर्ड यूज हो गया, एक क्वालिटी का वर्ड हमारे पास है and multifunctional blades. हाँ। इसको हम करते हैं वेजिटेबल कटर मल्टी फंक्शनल, वेजिटेबल कटर मल्टी फंक्शनल स्टील ब्लेड कर देते हैं विद स्टील ब्लेड। अब देखें 47 थे, 43 बच गए, हमने 4 वर्ड्स जो हैं कीवर्ड्स यूज कर लिए हैं। तो अब समझ आ गई ये बात की कि जो कीवर्ड्स अच्छे से निकालने हैं, अच्छी तरह रिसर्च करके, अच्छे सर्च वॉल्यूम वाले, ऑर्गेनिक मैच टाइप वाले, देन उन कीवर्ड्स को यहाँ ऐसे प्रोसीड करना है। फ्रैंकनस्टाइन में से निकालने के बाद इधर लेके आना है, इधर लेके आने के बाद आपने उनको यूज करना है इसी तरह। अगर आप मैनुअली ये काम करते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि फलां कौन सा कीवर्ड क्रॉस करना है। कॉपी पेंसिल से आप करते हैं या ऐसे इधर वर्ड की फाइल में डिलीट करते हैं या उसको कट करके दूसरी फाइल में डालते हैं, तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग काम हो जाएगा। तो यहाँ इजी बन सकता है। समझ आ गई बात की? जी सर। ओके जी, साथ में एक और चीज़ है हमारे पास, दैट इज अच्छा जी, ये हमारे पास है कीवर्ड रिसर्च के अंदर ही है मिसपेलिनेटर। देखें मिसपेलिनेटर, ये सेरिब्रो मैग्नेट और देन मिसपेलिनेटर है कीवर्ड रिसर्च की हेडिंग में। नजर आ रहा है सबको? ओके करें जरा, फिर आगे चलते हैं। जी सर। जी सर। ओके जी, ओके इसको हमने क्लिक कर दिया, क्योंकि ये इसलिए मैं ओके करवाता हूँ कि जिस बंदे के हाथ में माउस होता है वो तो स्पीड से चलता जाता है, वो नज़र आता नहीं है, फिर आप खपते रहते हैं, आपको फंक्शन मिलता नहीं है और फिर आप छोड़ देते हैं। आज हमने ओवरऑल क्या देखा है, कीवर्ड रिसर्च में हमने सेरिब्रो को पढ़ा, फिर मैग्नेट को पढ़ा, बल्कि मैग्नेट को किया भी सही, मैग्नेट से फिर आगे फ्रैंकनस्टाइन, फिर स्क्रिबल में गए, उसके बाद स्क्रिबल में हमने लिस्टिंग कंप्लीट करके बना के वहां से फिर वो कॉपी करके आपने वहां डालनी है टेम्पलेट में, जब आप प्रोफेशनली काम कर रहे होंगे तो इस तरह करना होगा। और देन एक चीज़ है मिसपेलिनेटर। मिसपेलिनेटर क्या है कि वो आपको मिस स्पेलिंग्स बताता है। लाइक एक कीवर्ड आप देंगे, उसको मेन और साफ सुथरा और क्लियर और ओरिजिनल स्पेलिंग वाला, जो उसके रियल स्पेलिंग होंगे वो आप लिखेंगे कीवर्ड यहाँ पर। उस कीवर्ड को फर्ज करें हम वेजिटेबल चॉपर लिख दिया हमने, और इसके बाद हमने लिख दिया, क्या लिखा, हेलमेट लिख दिया, और इसी तरह इसके साथ हम एक और कीवर्ड लिख देते हैं डॉग, LESH, लीश, डॉग लीश। आपने कीवर्ड लिखने हैं ये ओरिजिनल कीवर्ड्स की हेडिंग में, ये देखें, ठीक है। और ये फिर इधर आएंगे प्रीपेयर कीवर्ड्स में। कैसे आएंगे, आप इनको करेंगे यहाँ प्रीपेयर, प्रीपेयर पर क्लिक करेंगे तो देन ये आपको वो करेगा, फिर आपने यहाँ पर करना है ओके। ओके करने के बाद आपने ये फाइंड मिस स्पेलिंग्स, इट मीन इसका क्या काम है कि ये जो अब हमारे कीवर्ड्स हैं यहाँ पर अब देखें, वेजिटेबल चॉपर हेलमेट लीश डॉग। अब ये है कि मोस्टली और काफ़ी कीवर्ड्स दुनिया गलत सर्च भी करती है। जब वो गलत करती है, इसके साथ हम एक और कीवर्ड भी डालते हैं, स्कूल कर लेते हैं, ठीक है, और इसके साथ एक बैग कर लेते हैं।
सर कोई रॉन्ग स्पेलिंग लिखे? जी क्या फरमाया? मैंने बोला कोई रॉन्ग स्पेलिंग लिखे ताकि वो करेक्शन देना। नहीं 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 नहीं, इसका काम ये नहीं है, इसका काम अब सुने ना, इसलिए तो मैं इतनी तमीद बांध रहा हूँ मौलवियों की तरह। बिल्कुल सर। इसमें ये होगा कि ये दुरुस्त कीवर्ड पर, अब दुनिया ये नहीं है कि कीवर्ड स्कूल के स्पेलिंग SCHOOL हैं तो वो SCHOOL ही लिखेंगे, काफी दुनिया उसको SCHUL या OL कर रही होगी। तो अब ये हमें परसेंटेज देगा कि कितने परसेंट इसकी पॉपुलैरिटी है, मतलब कि कितने परसेंट ये सर्च हो रहा है। फर्ज करें एक स्कूल बैग की हम एग्जांपल कर लेते हैं कि ये इसका सर्च वॉल्यूम 10,000 है, 10,000 सर्च वॉल्यूम है और ये 25% मतलब 2500, ठीक है, 2,500 इसका सर्च वॉल्यूम जो है वो SCHOL पे आ रहा है, ठीक है। तो वो जनाब इस तरह उसका क्या हो जाएगा, वो हमें मिस स्पेलिंग्स जो अच्छी पॉपुलैरिटी वाले होंगे, अभी मैं आगे एक मिनट में इसलिए रोका हुआ था कि मैंने कहा चलो ये इसका वो कर लूँ, स्क्रीनशॉट आपको भेज देता हूँ। उसमें जनाबे वाला आपको जो अच्छी पॉपुलैरिटी वाले कीवर्ड्स होते हैं फिर आप उनको उसमें यूज भी करते हैं। अपनी लिस्टिंग में उनको यूज भी करते हैं, क्यों कि दुनिया जिन मिस स्पेलिंग्स पर मैं इनको प्रिपेयर करता हूँ, आपको एग्जांपल देता हूँ। ये आप फाइंड मिस स्पेलिंग्स करेंगे तो ये फाइंड हो रहे हैं ऊपर, इसने काम अब ये शुरू कर दिए 4% ये वगैरह। अच्छा जी, होता ये है कि अब आप एक बंदे को ढूंढने जाते हैं जनाब, एक मोहल्ले में गए, आपको ना आपने देखा हुआ है ना आपको उसका अता पता पता है, लेकिन ये है कि आपको अता पता इतना पता है, मोहल्ले का पता है, आपको उसके नाम का पता है, लेकिन उसका जो असल नाम है, असल नाम उसका वहाँ मोहल्ले के बंदे पड़ोसी भी नहीं जानते, उसका जो उल्टा नेम जो निक नेम उसका मशहूर है वो उस नाम से मशहूर है, ठीक है। तो इसी तरह हम एक गए और वो राणा साहब थे, उनका जो नाम था मेरे पास ओरिजिनल सेव था और उनका वहाँ निक नेम था बोनी। तो वो बोनी जनाब हम तलाश करते रहे, बिला आखिर वो बोनी के साथ एक बंदा रहता था, ड्राइवर था उसका, तो उसने कहा जनाब राणा बोनी। मैंने कहा ये मुझे नहीं पता, मुझे तो इतना उसके नाम का पता है। वो कहता है वही है, नंबर मिलाओ। नंबर मिलाया जनाब, कॉल पे बात हुई, जो ही उसने सलाम किया तो उसने कहा यही है, इशारा कर दिया मुझे, ठीक है। फिर उस बंदे ने भी बात की। तो इसी तरह अगर नया बंदा जाता है, उसको बंदे के निक नाम का पता नहीं है, निक नेम का पता नहीं है, तो वो पूरा 2 3 4 घंटे खपता रहेगा और कोई बाबा आगे उसको बताएगा कि भाई ये उसका तो पूछ रहा है, आपको नहीं पता उसका असल नाम ये है। तो इसी तरह यहाँ पर भी अगर आप मिस अब देखें वेजिटेबल, ठीक है, मिस स्पेलिंग्स अगर वेजिटेबल की फर्ज करें 10,000 है, हम जो एग्जांपल ले रहे थे, इसकी सर्च वॉल्यूम मंथली 10,000 है, वेजिटेबल का VEGTABLE वेजिटेबल का 10,000 है, तो इट मीन 48% से मुराद है आपका 4800 जो है इस पर आ रहा है, गलत स्पेलिंग पर आ रहा है। तो अगर आप अच्छे स्पेलिंग यानी रियल स्पेलिंग लिखते हैं, ओरिजिनल इसके लिखते हैं, और मिस स्पेलिंग्स कौन से, मिस स्पेलिंग्स वो वाले जिन पर अच्छा सर्च वॉल्यूम है, क्योंकि हमने भाई प्रोडक्ट बेचनी है उसके कीवर्ड के बुनियाद पर, और कीवर्ड वो डालने हैं जिन पर अच्छा सर्च वॉल्यूम होगा। फर्ज करें अब वेजिटेबल कटर को, ठीक है, वो उस्ताद कहते हैं, सही है, फर्ज करें एक एग्जांपल दे रहा हूं, और उस पर सर्च वॉल्यूम हो 60%, तो भाई हम उस्ताद लिखेंगे उसके बैक एंड पे, ठीक है, उसके लिस्टिंग में। क्यों? क्योंकि भाई उसको उसका सर्च वॉल्यूम ही इतना है कि लोग वेजिटेबल कटर को उस्ताद के नाम से सर्च कर रहे हैं। बात की समझ आई है कि नहीं कुछ? जी जी सर। सर, समझ में आ गई। अब बात यह है कि अगर आपने स्पेलिंग, इसको कहते हैं ऑप्टिमाइज लिस्टिंग, ठीक है। लिस्टिंग बनाना अलग बात है और मुसले और अच्छी और इस्लाह शुदा लिस्टिंग तैयार करना एक और बात होती है, ठीक है। खाना बनाना और बात है, अच्छा बनाना और बात है, कोई भी काम करना, ठीक है,
ٹائم پاس کرنا الگ بات ہے، لیکن اس کو سلیقے سے طریقے سے ڈھنگ سے کرنا الگ بات. تو اسی طرح یہاں لسٹنگ کرنا الگ بات ہے، لیکن ڈھنگ سے کرنا الگ بات ہے. تو یہاں پر جناب والا آپ نے یہ ویجیٹیبل کٹر فرض کریں اس کے 1000 سیلر بیٹھے ہیں ویجیٹیبل کٹر کے، 861 ہیں آئی تھنک سو، 861 بیٹھے ہیں. تو ان میں سے 850 نے جو ہے اوریجنل سپیلنگ لکھے ہوئے ہیں، مس اسپیلینیٹر انہوں نے یوز نہیں کیا. تو باقی 11 لوگوں نے کیا ہے. جب 11 لوگ یہ چیزیں کریں گے، یہ اب ویجیٹیبل ہے، یہ ویجاٹیبل ہے. اب اس کی بھی 26% بہت بڑی ہے، ٹھیک ہے، 26.5 یہ بھی کافی سرچ ہے. تو یہ جناب یہ چیزیں وہ اپنے بیک اینڈ میں 11 بندے جو ڈال کے بیٹھے ہیں. تو پھر جو لوگ مطلب جو یہ ادھر 4800 لوگ آ کے سرچ کریں گے، 4800 سرچز جو ہوں گی ویجیٹیبل پر ہوں گی، تو ان میں کیا ہوگا، 850 بندوں کی پروڈکٹ شو نہیں ہوگی، اونلی ان کی شو ہوگی. موسٹلی جو 11 بندے ہیں ان کی اوپر شو ہوگی، اگر ان کی ہوئی بھی تو وہ بعد میں ہوگی. تو اس طرح جناب وہ ان کو سیل ملے گی اور ان کی کنورژن کے چانسز زیادہ ہوں گے. تو یہ سین ہوتا ہے، مس پیلینیٹر کا فائدہ ہوتا ہے. کلیئر ہو گیا یہ مس پیلینیٹر آپ کا؟ ایک دم کلیئر. جی سر کلیئر. اور یہ 5% سے جب اس کی ایوریج پاپولیرٹی پلس ہوتی ہے تو پھر یہ اپنے اس میں ڈال لیتا ہے، آٹو کریکشن میں بھی ڈال لیتا ہے امیزون. مطلب ویجیٹیبل کٹر جو لکھے گا تو اس کو ویجیٹیبل کٹر ہی شو ہوگا. لیکن یہ آپ کی لسٹنگ میں جس کی لسٹنگ میں یہ ہوگا ان کی اوپر شو ہوگی، باقی لوگ بعد میں آئیں گے. اور اس کے بعد بات ہو گئی جناب آپ کی، نیچے ہم دیکھتے ہیں چوپر. اب یہ چیک کریں، یہ دیکھیں بھائی، اوریجنل ورڈ چوپر ہے، PER ہے، بٹ جو آپ کا دوسرا ہے مس اسپیلنگ سنگل پی کے ساتھ ہے، جیسا کہ میں نے اگزامپل دی تھی سکول کی. اب یہ ہیلمنٹ ہے، ہیلمنٹ ورڈ جو ہے اس کی 53 آ رہی ہے ہیلمنٹ کی. اب اس کے علاوہ ہم سکول کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کو چوپر کو بھی چیک کرتے ہیں. چوپر کی 100% آ رہی ہے پاپولیرٹی. اس کو ہم گوگل ٹرینڈ کرتے ہیں، ایک منٹ ابھی دیکھتے ہیں. اس کے بعد ہم سکول پر نظر ڈالتے ہیں. ہمارے پاس جناب ڈاگ DOGG آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی 20% ہے. DAG ہے، اور اس کے بعد DAWG ڈاگ، اور سکول کدھر گیا ہے. اب لیش LESH لیش، ٹھیک ہے، یہ ڈاگ لیش، یہ جو بیلٹ ہوتی ہے کتے کے لیے یا زنجیر کہہ لیں، چین کہہ لیں، وہ LESH لیش. یہ اب اس کی 81%، بلکہ 82 بنے گی، 81.8 ہے. تو یہ ہے اس کی. گوگل ٹرینڈ دیکھتے ہیں اور پھر دی اینڈ کرتے ہیں. کیونکہ یہ اس لیے اتنی وہ کرتا ہوں، ایک ٹاپک پہ ایک بات پہ 5-5 10-10 منٹ بولتا ہوں تاکہ اچھے سے آپ کو سمجھ آ جائے، کلیئر ہو جائے پوائنٹ.